और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई उन्होंने युद्ध रोकने के लिए की है, शुरू करने के लिए नहीं। अमेरिका फर्स्ट ये रणनीति रही है अमेरिका की, लेकिन अति संवेदनशील परिस्थितियों में यह कदम अमेरिका को उठाने पड़े हैं और ये बड़ा हमला अमेरिकी सेना ने किया है। और अगर ईरान अब भी नहीं रुका तो ये और हमले के जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको सुनाते हैं, क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. विशाल पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से वो हमले किए गए वो शांति लाने के लिए है, लेकिन अगर ईरान अब भी नहीं रुका, अब भी नहीं माना, तो और उसके लिए खराब होगा और ट्रेजेडीज अब वहां ईरान में होने जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी गई कि अगर ईरान शांति के लिए तैयार नहीं होता है तो जो अब अगला हमारा टारगेट होगा वो भी बहुत केंद्रित होगा और बहुत तेज गति से हम उन तमाम और ठिकानों को ईरान में निशाना बना सकते हैं। एक तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये हमला काफी सफल रहा है और जिस तरह से अमेरिकी मिलिट्री ने इस हमले को अंजाम दिया है, बीते कई दशकों में ऐसा हमला नहीं किया गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका को संबोधित करते हुए ये कहा गया और इसके साथ ही
ये कह रहे हैं कि ईरान लगातार पिछले 40 सालों से धमकी दे रहा था, डच टू अमेरिका, डच टू इजराइल, और काफी लंबे समय से मैंने सोचा था कि अब ये नहीं चलना चाहिए। और जो अमेरिका की मिलिट्री है उसने यहाँ पर अमेरिका के वो ईरान के 3 जो परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए ये बताया है, और इसके साथ ही ये कहा है कि ये काफी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से रहा है। ईरान को अब शांति बनानी चाहिए, यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। उन्होंने इजराइल की मिलिट्री को भी बहुत धन्यवाद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जिस तरह से इजराइल ने पिछले 8-9 दिनों से लगातार ईरान से जंग लड़ी है और ईरान के जो अलग अलग ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है। तो अब देखना ये होगा ईरान किस तरह की प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर देता है। बिल्कुल, अब सभी की निगाहें ईरान की प्रतिक्रिया पर है, और जिस तरह से अगर हम खामेनेई की बात करें विशाल, तो वो लगातार साफ ईरान करता आ रहा है कि वो सरेंडर से युद्ध में नहीं करेगा। और अब मुहर्रम का जिक्र करते हुए भी आयतुल्ला अली खामेनेई का बयान सामने आया था कि जो मुहर्रम का वक्त होता है वो ईरान के जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए वो दुख का वक्त होता है, और अगर ऐसे वक्त पर भी कोई भी हमला ईरान के ऊपर होता है तो फिर वो पीछे कभी नहीं हटने वाला है। बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि जब इजराइल ने सबसे पहला हमला आज से 10 दिन पहले ईरान के ऊपर किया था, उस समय ईरान की तरफ से बयान आया था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो उसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं ईरान उनको निशाना बनाएगा। तो क्या ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा? अगर ईरान की तरफ से ऐसा किया जाता है तो अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला जरूर किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से आज ये कहा भी कि ईरान को अब शांति बनानी चाहिए, और अगर ईरान शांति नहीं बनाता है तो हमारे हमले और ज्यादा तेज होंगे, और ज्यादा केंद्रित होंगे, और हमारा निशाना बहुत ही सटीक होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी सीधे तौर पर जहां एक तरफ शांति की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को सीधे तौर पर धमकी भी दी जा रही है कि अब अगर शांति के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ या फिर आगे वो हमला करता है तो इसका जवाब बहुत घातक होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिका को धन्यवाद किया है और कहा है कि शांति शक्ति से आती है। ये बयान नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। तो अमेरिका और इजराइल एक पेज पर पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल तक ये सवाल थे कि क्या अमेरिका इजराइल से पीछे जा रहा है, लेकिन अब जब ये हमले हो गए तो जवाब यह है कि ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक साथ खड़े हैं, और इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए मजबूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए इजराइल एक इतना बड़ा केंद्र है अमेरिका के लिए, जहां से वो कम से कम इजराइल को हमेशा साथ रखना चाहेगा, तभी ईरान पर। विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास।